so much, madam, for your kind words introducing me to the participants. I hope I am audible to each and every one of Yes, you. sir. Yes, sir. Yeah. So, dear all participants, are you comfortable? Because this is the last session of this, of today, basically. So, hope you still have enough energy to retain in this session till its end, right? Dear all friends, I think there might have been enough discussion on NAP 2020 during various sessions in this particular program, right? So I understand that you have fair idea about NAP, National Education Policy 2020 by now. Uh, in the meanwhile, uh, I would like to make this session as an interactive session. I would encourage all of you to, come up with queries in between as we progress in this particular session, so that you don't get bored, though it is a last session. As well, it will clarify many of your ideas and doubts if there are any. Right. As well, I would request all of you to keep your videos on as far as possible, so that at least we can have a feel of face-to-face kind of interaction with each other. So that will basically motivate and encourage the speakers always. So thank you so much, dear participants. Many of you have turned on your videos. Uh, Dear friends, you just now had a session on holistic education, which is a very important component of NAP 2020. Uh, there is another important theme which needs to be covered or to be dwelt upon with all the participants. The theme is about the skill education. Okay. Before actually going into the presentation of today's session, I would like to give a brief, information or little background about the skill education as such. Fine. So, if all of you are with me, let me know what is your understanding about the skill education. So, if anybody has any, fair idea about the skill education, they can share their views on that. As well, I would also like to, toggle between English, Marathi, Hindi, if you are comfortable with. सगळ्यांना मराठी येतं का? हो सर. येते सर, जवळपास सगळ्यांनाच. येते सर. ओके, सगळ्यांना ठीक आहे. माझा हा प्रश्न होता की आपला एक स्किल एज्युकेशनची कन्सेप्ट काय आहे, म्हणजे आपल्याला काय समजतं की जेव्हा आपण स्किल एज्युकेशन असं म्हणतो, किंवा फॉर दॅट मॅटर लेट मी ऑल्सो शेअर विथ यू. नाउडेज वी आर टॉकिंग अबाउट दी बजवर्ड विच इज व्होकेशनलायझेशन ऑफ द एज्युकेशन, मेन स्ट्रीम एज्युकेशन, है ना. म्हणजे व्होकेशनलायझेशन ऑफ द एज्युकेशन आपल्याला बऱ्याचशा वेळेस NAP 2020 डिस्कस करताना ही टर्म आली असेल. So I was just trying to get your ideas on that particular buzzword, vocationalization of the mainstream education. म्हणजे काय? आता बऱ्याचशा ठिकाणी जवळपास सगळ्याच कॉलेजेसमध्ये NAP 2020चं इम्प्लिमेंटेशन जोरात सुरू आहे, राईट. आणि याच्यामध्ये बरेचसे एज्युकेशनचे कॉम्पोनंट्स तुम्ही घालायचा प्रयत्न करताय. त्याच्यामध्ये एक व्होकेशनल एज्युकेशनचा कॉम्पोनंट आहे. So meaning that we are trying to integrate the vocational education, for that matter the skill education. Okay, vocational education ची दुसरी बाजू स्किल एज्युकेशन आपण त्याला गृहीत धरू, आणि ते स्किल एज्युकेशन तुमच्या मेन स्ट्रीम एज्युकेशन सोबत इंटिग्रेट करायचा प्रयत्न करताय. आपण का करतोय हा प्रयत्न? कारण की तसं रिकमेंडेशन आपल्या NAP 2020 डॉक्युमेंटनी दिलेलं आहे, बरोबर आहे. तर आपल्याकडे जेवढे काही अवेलेबल क्रेडिट पॉइंट्स आहे, फॉर दॅट मॅटर
UG1 म्हणजे फर्स्ट इयर UG साठी किंवा सेकंड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर Excuse me, बऱ्याचशा sir. ठिकाणी हॅलो या Sir, excuse या sir, many participants from our university not understand Marathi. So, could you please continue in English, sorry sir? sorry sorry yeah I was trying to I was trying to get from you about your understanding on the vocationalization of the mainstream education. Nowadays you might have observed that everywhere there is implementation of NEP 2020 is going on in a big way as such. Okay, and while we are into the implementation of NEP 2020, you might have come across the many components of education which you needs to imbibe or introduce as a part of your curriculum. Okay, so one of the part which is basically the skill education. Okay, along with your mainstream education or academic education, so to say, we are also trying to integrate our mainstream education with other components. Okay, अदर कंपोनेंट्स मीनिंग इसमें आपको होलिस्टिक एजुकेशन भी आ गया, स्किल एजुकेशन भी आ गया, एंड इन योर मेन स्ट्रीम एजुकेशन. ओके, so this is what is basically nothing but the vocationalization of the education going on. Okay, now why we are going to integrate our this particular component in our mainstream education is because the NEP 2020 recommends that way. Okay, now you might have come across this question, or you may ask yourself ki why NEP 2020 has at all recommended holistic education, for that matter the skill education as well, as a policy document. Okay, so can anybody of you let me know on this particular issue, that why at all NEP 2020 is recommending the vocationalization of the mainstream education? So can anybody let me know on that? नौकरी की मात्र अपेक्षा न करते हुए मनुष्य में कोई ना कोई कौशल्य का विकास होना चाहिए. कौशल विकसित हुआ तो वो व्यक्ति अपने पैरों पे खुद खड़ा होगा. Yes, that is when we looking at it. Shweta madam, anybody else has any opinion to share? Hope all of you are still there in the session. You are not tired, I hope so. Yes, sir. Yeah, very good. So can anybody let me know that? Yeah. In fact, जो है हाँ, tell me please, किरण sir. जी सर, ये स्किल एजुकेशन इसलिए एसेंशियल है आज के दौर में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन हम लोग आज तक लेते आ रहे हैं ना, हाँ, या ट्रेडिशनल एजुकेशन में डिग्रियां तो हम लोगों को मिल रही है, मगर उस डिग्री के वजह से जो अर्निंग एंड लर्निंग जो चीज है ना, ये दिस कुडंट बी पॉसिबल ना. सो दैट्स व्हाई in this NEP government is trying to do better than traditional education. I think so. Okay. So Kiran sir, you mean to say that there is some component of enhancing the employability of the students through NEP 2020, right? Meaning they Exactly sir, I just want to say that. Yeah, so I understood. Dr. Rahul has to say something, and Dr. Piyush also has to say something. Both of them have raised their hands, so one by one you can. सर, हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल रहता है. Exactly. किसी ना किसी विषय की विशेष रुचि रहती है. अगर उसे उसका रुचि का या जो उसे पसंद है वो एजुकेशन अगर उसे दिया गया, तो उसमें वो काफी प्रोग्रेस कर सकता है. He can excel. उसकी जो रुचि है वो करेक्ट पढ़ाने के लिए वो स्किल एजुकेशन जरूरी है. Exactly. So Dr. Piyush has to say something. यस सर, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अगर आपके पास जिस चीज में रुचि है ना, उस रुचि के अकॉर्डिंग अगर आप कोई काम करते हो तो आप उसको बहुत ही है ना बिना टाइम लिमिट के करते हो. आपको टाइम का पता ही नहीं चलता जब वो काम कर रहे हो. Yeah. Basically,
पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं देखना पड़ता कि बाहर से बारात निकली है, कौन निकला है, कब खाना यहाँ पे रखा गया, कब कॉफी रखी गई। तो आप इतना डूब के उसमें काम करते हो। तो ये एनईपी का भी मेन मोटो यही है कि आपकी जो रुचि उसके अकॉर्डिंग आपको वो शिक्षा दी जाए, ताकि आप अपने वैदिक परंपरा के अकॉर्डिंग, मैं कह सकता हूँ कि अपने आप को उसमें ढाले और अपनी रुचि के अकॉर्डिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाए और उसको अपना ना आध्यात्मिक के रूप में उसको लेवे और अपने काम के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो शायद ये सबसे अच्छा होगा उसके भविष्य के लिए भी और हमारे समाज और देश के लिए और विश्व के लिए भी। थैंक यू सर। यस यस, सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर पीयूष। आपने सही उसका जो क्रक्स है वो एनईपी 2020 का पकड़ा है, जिसमें ये कहा गया है कि देखिए, जैसे आपको कोई चीज में या कोई फील्ड में इंटरेस्ट हो तो आप फिर उसके ऊपर जो कोई भी प्रोजेक्ट करते हो या जॉब करते हो या उसको पढ़ते हो तो यू गेट एनग्रॉस्ड इनटू इट, मतलब आप उसमें ढल जाते हो, right? And you basically enjoy it, you drive happiness out of it basically, okay? तो ये जब होगा तब सच्चे मायने में आपको एजुकेशन का महत्व समझेगा। So that is what is basically the underlying philosophy of NEP 2020। और ये सही है कि जिस चीज में बच्चों को इंटरेस्ट है वही चीज उसको दी गई तो ही और शी कैन मेक ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इनटू इट, ओके? क्योंकि उनके रुचि वाला वो सब्जेक्ट है, राइट? और उसको अगर हम अध्यात्म की जोड़ दे तो मेरे ख्याल से नथिंग लाइक दैट, ओके? you can reach to the highest level of happiness into it, okay? So that kind of expectations are there while we implement the NEP 2020, okay? So मोटा मोटी ये है इसमें कि स्किल एजुकेशन का कंपोनेंट हम इसमें लाना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स क्यों आते हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि उनको एक ऑफशूट हमारे एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का ऑफशूट ये है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब्स फॉर देयर सर्वाइवल इन द फ्यूचर लाइफ, ओके? ये कंपोनेंट है। खाली हमको ज्ञान प्राप्त करना वो एक तो उद्देश्य है, हमको एक अच्छा इंसान बनना ये उद्देश्य है, उसमें उसका एक ऑफशूट ये है कि हम इस तरीके से भी उसके तरफ देख रहे हैं कि उसमें से हमको कुछ अर्थ ग्रहण हो, राइट? सो दैट दुनिया को फेस करने मिले, या सो दैट वी कैन लिव दी सैटिस्फाइड लाइफ, ओके? ये उसमें का एक उद्देश्य है। हमारा एक एजुकेशन स्टेचर भी बढ़े, हमारी बौद्धिक उसमें प्रगति भी हो और हमको जीने का एक सहारा भी मिले, ये एक शिक्षण लेने का उद्देश्य है। तो हम जो the education which we are imparting to the students, if it is not sufficing this purpose, okay? अगर ये पर्पस के लिए वो सर्व नहीं कर रहा है तो then students will not turn to us, मतलब बच्चे नहीं आएंगे हमारे एजुकेशन लेने के लिए, okay? And that is to some extent is also the reality nowadays, okay? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो बहुत कम है। शुरुआत में तो आते हैं बच्चे, स्कूल एजुकेशन में जब एनरोलमेंट होता है तो हम देखते हैं कि अराउंड 87% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एंटाइटल्ड फॉर गेटिंग एजुकेशन दे आर कमिंग इनटू स्कूल एजुकेशन। पर जब कॉलेज की बात आती है तो कॉलेज में बहुत कम लोग आते हैं। दिस इज अराउंड 30-35%, जो हम GAR बोलते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। 87 में से एकदम हम 35% पे आ गए हैं, तो इतना कम परसेंटेज होता है। मतलब स्कूल का अगर हम बात करें तो अराउंड 26 करोड़ ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें आते हैं पढ़ने के लिए, और हायर एजुकेशन में या डिग्री एजुकेशन में आ रहे हमारे 4.5 करोड़। So around 22-23 crores of the students, they are not coming into the higher education. This is very variable situation। मतलब ये चिंता की बात है हमारे यहाँ कि इतने सारे बच्चे जो एलिजिबल है हायर एजुकेशन के लिए वो हमारे कॉलेजेस में नहीं आ रहे हैं।
तो ये इसके बारे में हमने सोचना चाहिए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि अगर वो आते हैं कॉलेजेस में, कॉलेज की डिग्री लेने के बाद में भी उनको अगर कोई जॉब नहीं मिल रहा है या कोई उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो they will lose the interest in higher education, and this is naturally happening. Okay, there are many reasons for it. It's not only कि वो बच्चे ही रिस्पॉन्सिबल है या हमारे कॉलेजेस रिस्पॉन्सिबल है. There are many things, right from the policy of education, okay, to all the stakeholders of the higher education. They are responsible for this, including we teaching fraternity, students, parents, everyone. Okay. Now इसको अगर हम बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलें? इसको बदलने के लिए, क्योंकि देखिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि डिग्री कॉलेजेस में जो आते हैं वो डिग्री तो लेते हैं, आफ्टर 3 years और 4 years उनके हाथ में डिग्री का कागज रहता है, पर उनके दिमाग में वो कॉम्पिटेंसी नहीं है जो कॉम्पिटेंसी उनको जॉब खींच के लाए. Okay, they cannot fetch the jobs for themselves because they don't have the enough competency level with them. Okay, or skill for that matter we can say. Whereas हम अगर ITI वाले बच्चे देखें या कोई vocational education वाले बच्चे देखें तो they do not remain unemployed. Okay, they get employment immediately after they come out of the college or whatever, ITI or diploma or whatever the education they take. But there we observe that their competency level is very very high. तो इसका ये डिफरेंस क्यों है? अगर कॉलेज की तरफ हम देखें तो उनके पास में डिग्री है पर कॉम्पिटेंसी नहीं है, और बाकी वोकेशनल एजुकेशन में उनके पास में सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं है, पर उनके पास में कॉम्पिटेंस है. ओके, कॉम्पिटेंसी लेवल उनकी हाई है, तो दे कैन सर्वाइव वेरी वेल. ओके, लेकिन हमारे डिग्री वाले जो है बच्चे फिर इतना उनको तकलीफ होती है कि वो अंडर वैल्यूड जॉब लेने के लिए भी तैयार होते हैं. बहुत सारी जगह हम देखते हैं और उनको एक तरीके का पछतावा आता है कि हमने अननेसेसरी इतने साल डिग्री कॉलेजेस में वेस्ट किए और आखिर में तो हमको ये काम करना पड़ रहा है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बीइंग लूज्ड बाय द स्टूडेंट्स एज सच, एंड देयरफॉर इट वाज एन अर्जेंट नीड एज वेल. उसके अलावा भी ग्लोबली जो भी चेंजेस हो रहे हैं एंड दोज आर रिकमेंडेड देयर इन एसडीजीज गोल, वो गोल की तरफ भी हम देखें और ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द कंट्री हमने अगर देखा तो उसमें आपको ये लगेगा कि बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देने की सख्त ज़रूरत है. एज वेल हमने अगर दूसरा भी ऑब्जर्वेशन और दूसरे भी रिपोर्ट्स पढ़े तो हमको ऐसा लगेगा कि जो भी पूरे विश्व में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में वोकेशनल एजुकेशन का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है हमारे एकेडमिक एजुकेशन से. मतलब 50-60 up to 70% of the students, those who are into education in those developed countries are getting exposed to the vocational education, like Germany, Austria, many countries, many European countries, even South Africa, Japan, everywhere you will find Singapore. उनका vocational components, मतलब उनका जो मॉडल है एजुकेशन का, उसमें vocational components are integrated. ओके, इनबिल्ट है उसमें. तो एक तरीके से उनका जो एक हैंड्स ऑन सेशन बोलिए या प्रैक्टिकल नॉलेज बोलिए या उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल ज़्यादा होती है, एंड विच इन टर्न इज कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एंड देयरफॉर दोज कंट्रीज आर डेवलप्ड इन अ वे, वी कैन से दैट, राइट. And therefore, if we also want to, go into the, line of that particular countries as such, developed countries, then we need to, seriously think about integrating vocational education in our main education as such. And therefore, this NEP 2020, जो national education policy है, नवीन शैक्षणिक धोरण आपण ज्याला म्हणतो, NEP 2020 has that particular flavor of vocationalizing the mainstream education. Okay, so with this background we will begin with the presentation on today's topic. Today's topic which I have taken for you, discussion with you, is on the role of the teacher for promoting the skill development as such. Okay,
और जहाँ तक अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया है उस पर से तो मुझे लग रहा है कि NEP 2020 के लिए आप सभी लोग ऑलमोस्ट कन्विंस्ड है और यू हैव टेकन इट टू योर हार्ट एंड स्पिरिट कि नहीं NEP 2020 होना चाहिए। ऐसा राहुल सर है, पीयूष सर है, रोहित सर है, इन सब लोगों ने बताया है। तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आप सही मायने में इसको बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, so with this particular background and little discussion on I mean this was just an attempt to create a kind of or tuning to happen the tuning of the participants with the today's topic. Let me begin with the presentation. Give me a few seconds so that I can share my presentation with you. Right, just a minute, hold on. So hope that my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so thank you so much, dear all participants. Now let us, start. Yeah, thank you so much. So let us start discussion on the role of a teacher in promoting skill development. Okay. अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि स्किल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है और स्किल डेवलपमेंट या स्किल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन हम क्यों लेना चाहते हैं या क्यों देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर टर्म एज सच, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ओके, और जहाँ तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की हम बात करेंगे तो देखिए पहला कुछ फ्रेज में, पहले कुछ स्लाइड्स में मैं ये अटेम्प्ट करूँगा कि आप लोगों को स्किल एजुकेशन का या वोकेशनल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में रोल ऑफ द टीचर, मतलब टीचर ने क्या करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड देन देयर आफ्टर द फाइनल कंक्लूजन। ओके, तो लेट अस बिगिन विद the idea of skill education and why at all skill education is required. So for that the background is basically the industrial revolution, औद्योगिक क्रांति हम जिसको कहते हैं। तो औद्योगिक अभी हम औद्योगिक क्रांति 4.0 में हैं। Okay, we are into the industrial revolution 4.0. So are you convinced with this? और इसके पहले बहुत सारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुई है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 3 और अभी हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 में हैं। तो टर्मिनोलॉजी है वो कॉइन हुई है 2015 में। तो 2015 के बाद में हम कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 में है हम। और since we are into the industrial revolution 4.0, people have started talking about the education 4.0 as well. लोग बोल रहे हैं कि अभी एजुकेशन 4.0 है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, इंडस्ट्री और meaning that to drive the growth in the industrial sector, okay, there has to be the human resource supply from the educational institutions. मतलब जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो कहाँ से आते हैं अल्टीमेटली those are coming from the educational institutions. Okay, तो educational institutions नहीं है तो required manpower इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा। तो इसलिए there is a very close relationship between industry and academia या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, और ये क्लोज रिलेशनशिप जो है वो विदाउट गैप होना चाहिए। अगर इसमें गैप रहा देन वी ऑलवेज से दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। मतलब इंडस्ट्री को क्या चाहिए और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या सप्लाई कर रहे हैं, इसमें अगर गैप आ गया तो इट विल लीड अस टू
द कंक्लूजन दैट कि इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो बच्चों में हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए गैप बढ़ रही है. सो आवर ऑलवेज अटेम्प्ट इज टू रिड्यूस दिस पर्टिकुलर गैप. ओके, हमारे एजुकेशन पॉलिसी का ये फिलॉसफी होना चाहिए, ये मोटो होना चाहिए कि हाउ टू रिड्यूस दी गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया. ओके, अभी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में आए हैं. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी थिंग्स. ओके, किसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0? किसी की आइडिया है इसके बारे में? हाउ डू वी कैरेक्टराइज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0? ओके, कोई मुझे बता पाएगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 क्या है? सो होप दैट स्टिल you are with me. You're all participants, I'm asking. Fine. हेलो Yeah. So yeah, please share. सर, वर्क फ्रॉम होम आ सकता है सर इसमें? और वर्क फ्रॉम होम इज बेसिकली वन वे, बट मैं ये कहना चाहता था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. मतलब ये तो एक वे हो गया है कि हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की वजह से ये पॉसिबल हो गया हमको कि हम घर से भी काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, राइट. पर इंडस्ट्रियल पार्डन more use of technology. हाँ, right. You are very much on the track as such. Use of artificial intelligence. Anybody else has? Very good, very nice. Yeah. और किसी को कुछ कहना है? देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 के कई एंगल्स हैं. ओके, जिसमें हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में ज्यादातर यू विल कम अक्रॉस दी ऑटोमेशन. मतलब हर कोई चीज का ऑटोमेशन हो रहा है. मीनिंग दैट ऑटोमेशन इन अ सेंस कि यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस दी इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ओके, जैसे मानव जहाँ पे काम कर रहा है, वो काम को मे बी सेमी ऑटोमेशन और फुल ऑटोमेशन उसमें हो रहा है. कई सारी जगह पे आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ऑटोमेशन हो रहा है. तो ये ऑटोमेशन is the one of the characteristics of the industrial revolution 4.0. ऑटोमेशन की वजह से क्या हो रहा है कि because of the development in the technology as such, of course there is a technology, automation is taking place. ऑटोमेशन कहाँ पे हो रहा है? आप बताइए कोई भी सेक्टर जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है. Almost everywhere you can find that there is a automation happening. Okay, you let me know any sector for that matter where there is no automation happening. Maybe your health sector, maybe your automobile sector, maybe your the agriculture sector, maybe your fin services sector, lot many sectors so to say. Okay, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है. टू द एक्सटेंट अभी आपको तो ऑटोमेटिक रिप्लाई मिल रहे हैं. ओके, मतलब सर्विसेज सेक्टर्स में आप जाएंगे तो आपको जैसे कहीं भी आप फोन करेंगे तो आपको रिप्लाई ऑटोमेटिक मिल रहा है बहुत सारी जगह. ओके, टू दैट एक्सटेंट जैसे हम एखादी एलेक्सा की बात करें तो एलेक्सा इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑटोमेशन हैपनिंग. जैसे आपको जगह पर ही नहीं उठते हुए भी आपको गाना सुनना है तो यू कैन इंस्ट्रक्ट दी एलेक्सा कि एलेक्सा प्ले दी सॉन्ग. ओके, ऑफ योर लाइकिंग, आपको जो चाहिए वो सॉन्ग वो एलेक्सा प्ले करेगा. टू दैट एक्सटेंट आपकी रिस्ट वॉच है. रिस्ट वॉच में देयर आर मेनी थिंग्स देयर. it can read your blood pressure, it can read your ECG and all. अगर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो एक्चुअली इट कैन रीड योर ऑल द हेल्थ पैरामीटर्स देयर
and as and when it find that there is something flaw or something wrong is going on, it can automatically raise the alarm for you, and then it may ask you or request you to book a or it can book a appointment with a doctor. Okay, to that extent that wristwatch can help you. Okay, आपकी फ्रीज है, ऑटोमेटिक फ्रीज है आपके, आप फ्रीज में क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है, इट कैन टॉक टू द ह्यूमन बीइंग. ओके, सो बहुत सारे ऑटोमेशन हमारे ह्यूमन लाइफ में हो रहे हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जैसे असेंबली लाइन है जहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बन रहे हैं, तो वहाँ पे स्क्रू फिटिंग से लेकर असेंबली ऑफ चेसिस तक ऑटोमेशन रोबोट काम कर रहे हैं. जहाँ कहीं पर भी आपको रिस्क लगती है ह्यूमन बीइंग के लिए, वहाँ पे यू कैन सेंड द रोबोट्स देयर. ओके, सो this particular thing is helping us, and this is what is we see as industrial revolution 4.0, because this is all possible because of the internet of things. जैसे कि आप नेटवर्क से हमेशा कनेक्टेड है, इसलिए सभी डिवाइसेस सभी जगह कनेक्टेड रहेंगे. आपके इंडस्ट्रियल मशीन्स कैन टॉक टू दी ह्यूमन बीइंग्स. जो आप शॉप फ्लोर पे काम करेंगे उनको मशीन के साथ में कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, राइट. दे कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस. NC-CNC मशीन्स उसमें है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउअडेज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0. उसमें साइबर सिक्योरिटी है. योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सभी जो है डिजिटल रिवोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं. सो ऑल दोज थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ease of human efforts basically, and towards the increasing the production to so to say. Okay, so this is where we call it as a industrial revolution 4.0, जिसमें cloud computing है, जिसमें 3D printing है. There are many fields which you may consider as a part of your industrial revolution 4.0, and this is all has become possible because of the टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एज सच. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी ने जिक्र किया था. इज अ वेरी फंटास्टिक एरिया एज सच, एंड इट इज गोइंग टू लिव फॉर लॉन्ग ईयर्स टू कम. जैसे हम अभी देखिए, देयर आर 2 साइड्स टू एनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. जैसे आपने न्यूक्लियर पावर का एक यूज किया था, तो यूज कर रहे हैं, तो उसमें दोनों वे से हो सकता है. उसमें एटम बम भी बन सकता है, इसमें इलेक्ट्रिक पावर भी बन सकती है. तो यू हैव टू कीप योर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. जैसे आपने न्यूक्लियर पावर के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी आपको, बिकॉज देयर आर 2 साइड्स टू इट. ओके, बट इट कैन help, it can help the human being in many ways as such. So again we will throw some light on this particular issue of artificial intelligence. पर हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी ये बहुत सारे बड़े पैमाने पे आएगा अभी आगे. ओके, और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या हो रहा है. मतलब जैसे प्रोग्रेस हुई है, वो प्रोग्रेस अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सेक्टर में नहीं दिख रही है. जिस रेट से इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोग्रेस हुई है या एक टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई है, उस रेट से हमारा एजुकेशन सेक्टर नहीं प्रोग्रेस कर पाया है. हम इसके पहले ये डिस्कस कर ले कि देखिए, ऑटोमेशन की वजह से या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की वजह से there are many things changing. Okay, changing the fundamental nature of the work as such. Okay, मतलब हमारे वर्क का नेचर बदल रहा है. it is reshaping the industries. करियर पाथ्स हमारे बदल रहे हैं. Okay, जैसे there are many examples I can share with you. For example, a simple example of a painter say. Okay, पेंटर अगर वो कपड़े पे पेंटिंग करेगा या दीवार पे पेंटिंग करेगा मैन्युअली,
पर अभी ये जमाना बदल गया है. नाउ कंप्यूटर बेस्ड डिजाइन्स he or she can do, and then it can he or she can take a print out of it, flex print out. तो जमाना बदल गया है, करियर पाथ बदल गए हैं, तो उस तरीके से हमको भी मोल्ड होना पड़ेगा. For example, our teaching career is also not on top of Industrial Revolution 4.0 on its functioning as such, dear all friends. Okay, तो इसीलिए जो हमारे पास में पुराना स्किल सेट है, वो स्किल सेट इज बिकमिंग आउटडेटेड. Okay, and therefore it is an urgent requirement for all of us to adapt to the new skill set. Okay, new vocational education, new things as such, new kind of skills as a part of your personality, maybe soft skills or hard skills, so to say. Okay, and therefore it is said that the future belongs to those equipped with the skills of problem solving, creativity, and digital literacy. So this is a time, dear friends, to change ourselves. Okay, and therefore this new landscape, it's critical to build the new skills that go beyond your technical knowledge. हमारे टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए, उसके साथ साथ में हमको बाकी भी स्किल्स होना आना जरूरी है. एंड देयरफॉर in 21st century it is said that the skills is no longer an option but it is a necessity. Okay, ये जरूरत हो गई है कि हमको हमारे सर्वाइवल के लिए नए टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आने जरूरी है. ओके, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सेक्टर वो इस तरीके से नहीं बदला, क्योंकि अभी मतलब ऑफ लेट बहुत सारे जगह तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि कोविड के बाद में, कोविड इन अ सेंस वी कैन कंसिडर दिस एज अ बून टू आवर एजुकेशन सेक्टर. अगर कोविड नहीं आता तो हम कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ देखते नहीं थे. ओके, बट इट इज ओनली द टेक्नोलॉजी or it is only because of the COVID we started using technology in our education sector. नहीं तो हम पहले तो हम टेक्नोलॉजी का एक तरीके से विरोध या रेजिस्टेंस करते थे, रेजिस्टेंस देते थे. टेक्नोलॉजी हमको एजुकेशन सेक्टर में नहीं चाहिए इन दैट सेंस, क्योंकि इसमें अगर टेक्नोलॉजी के साथ में आप जाना चाहते हैं तो आपको खुद को बहुत सारे बदलाव लाने पड़ते हैं. ओके, राइट फ्रॉम द चेंज इन योर करिकुलम, ओके, द वे यू टीच, पेडागॉगिकल चेंजेस उसमें आने जरूरी है. क्योंकि कोविड के समय में आपने देखा है कि आपने ऑनलाइन टीच भी किया, आपने ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी लिए, आपने ऑनलाइन टूल्स यूज किए हैं, आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी लिए हैं. तो टेक्नोलॉजी अगर नहीं रहती या ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं होती है तो 2-3 साल तो एजुकेशन ठप हो जाता या पूरा बंद ही हो जाता है. तो हम ये भी नहीं नकार सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बुरी है. टेक्नोलॉजी इज इट कैन बी बून and it is helping us in that sense as well. पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो जिस तरीके से बदलाव हुए वो हमारे सेक्टर में नहीं हुए, बट बिकॉज ऑफ द कोविड वी स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट लाइन. ओके, एंड इन द मीनवाइल देयर वाज अदर प्रेशर्स आल्सो. ओके, एंड देयरफॉर वी आर रिक्वायर्ड टू come up with the new education policy which will encompass all these requirements for the skill development of the students as such. ओके, और इसीलिए हम कहते हैं कि नए एजुकेशन पॉलिसी में ये पोटेंशियल है. नहीं तो हम हमारे कभी सिलेबस नहीं चेंज करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा हमने हमारे नोट्स छोड़ के ओवरहेड प्रोजेक्टर पे आए, ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसीज तैयार की, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में हमने कुछ तो कंप्यूटर को टच किया और पीपीटी बनाने लगे. पीपीटी के बाद में बहुत सारे फिर अभी तो मोबाइल एजुकेशन एंड देयर आर मेनी डेवलपमेंट्स एज सच कमिंग अप. पर हमने जो करिकुलम में बदलाव लाने चाहिए थे वो नहीं ला सके. ओके, बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 it basically change all those things, and those things are being changed through the implementation of NEP 2020. So with this particular background, let us move further. So dear all friends, till this particular discussion has anybody
got any query, we can discuss. So let us make it more interactive. Are you with me, dear all participants? Yes, sir. Hope that I still Yes, sir. consider that you are with me. Move to the next slide. And before actually beginning with the role of a teacher, I would like to give you some statistical information or some surveys for you, and reports also I would like to share with you, so that you are readily convinced with role of a teacher as such, right? So this is McKinsey's survey, and it says that this is very important, survey, and very interesting as well, about the enhancing skills and employability. Okay, so what McKinsey's survey says that the 40% lack of skills was the main reason for the entry level jobs. Okay, can you see my mouse movement here on the screen? So my computer there on the screen. Yes, yes, So sir. it says Yes, sir. that Yes, sir. Yes, sir. Yes, lack sir. of skills was the main reason for entry level jobs. Okay, 40% of the employers are saying like that. 60% said that new graduates were not adequately prepared for the world of work. Okay, because of many reasons. We are not going into the reasons, but the survey says that 60% were not adequately prepared for taking up the job. Okay, I mean job of of the demands which are posed by the job. Basically, they were not meeting that mean. Okay, as well, there were gaps in technical skills such as STEM subjects. Okay, STEM matlab science, technology, engineering, mathematics subject में technical skill में भी gap था बच्चों में, along with the soft skills like communication, teamwork, punctuality, ये भी missing था बच्चों में. Okay, so that is a survey. It says. Okay, at some of the places it was also observed that there was a locational mismatch. मतलब जहाँ पे स्किल है वहाँ पे काम नहीं है, जहाँ पे काम है वहाँ पे स्किल नहीं स्टूडेंट्स में. ये भी ऑब्जर्व किया गया है ये पर्टिकुलर सर्वे में. Okay, we will just move ahead and try to look at another report as well on the skills in demand. Okay, what employers are looking for. So the current job market, the demand for specific skills has reached the all-time high. Okay, कुछ ऐसे स्किल्स है जो अभी करंट जॉब लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा प्रमाण पे I mean डिमांड किए जा रहे हैं, right? So for that there is some survey and statistical information which I am sharing with you. You know that LinkedIn is basically a tool or is a space wherein a lot of basically the students, they try for fetching jobs for them. Okay, मतलब LinkedIn का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हम जॉब सर्च करते हैं. तो LinkedIn का सर्वे ये कहता है कि 92% of the professionals highlighted that the soft skills such as communication, problem solving are the crucial for jobs. I mean success in the job basically. Okay, ये LinkedIn का सर्वे कहता है. Google and Microsoft, they increasingly prioritize the emotional intelligence along with the technical expertise. मतलब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जब एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो ये भी देखते हैं साथ साथ में कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपका कितना है. ओके, because emotional intelligence basically allows you to collaborate with other colleagues. Okay, to listen the others minds as such. Okay, वो एक emotional intelligence रहता है. Okay, so they are also looking for such kind of characteristics in you. Okay, these shifts illustrate a compelling narrative that the ability to work collaboratively and adaptively has emerged as a key differentiator. मतलब जब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये देख रहे हैं तो इसका मतलब ये they are looking for collaboration and adaptability of the candidates as such.
Okay, and then World Economic Forum predicts that by 2025, the top skills in demand will include analytical thinking and creativity to drive the innovation. Okay, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये प्रेडिक्शन है कि बाय 25 हमको एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाना जरूरी है बच्चों में टू ड्राइव द इनोवेशन. Okay, innovation in the jobs as such. Okay, jobs in the sense ki, say for that matter, the products. Okay, products of the industries as such. Okay. Simultaneously, the need for digital proficiency has skyrocketed with 75 million jobs projected to require the advanced technical skills by 2025. Again, the World Economic Forum says it. Okay, so thus this evolving landscape of skills, it is vital for both employer and aspiring professionals as they navigate this dynamic environment. Okay, because as I told you earlier in our discussion that because of the industrial revolution 4.0, the things are changing, and many have been changed. Basically, the job role, the the progress of your career, the way it is going, demands from the industries. There are many things which one needs to basically think seriously, and accordingly we need to acquire those skills. Like here, as it is talked about, communication, problem solving, emotional intelligence, collaboration, adaptability, okay, analytical thinking, creativity, innovation, digital proficiency. These are all the skills, dear all friends, which we need to imbibe there amongst the students. Okay, so that they become the job ready. Okay, job ready human resource as such. Otherwise, if we do not imbibe these skills along with their technical skills, okay, then they will be loosely fitted for their jobs as such. Okay, and then that is why we see many a times, dear all friends, you might have witnessed कि डिग्री के बाद में बच्चे दूसरी जगह जाते हैं, कोर्सेस लगाते हैं, उनका टाइम जाता है, पैसा जाता है, या इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स खोलती है, उसमें उनका टाइम जाता है, उनका पैसा जाता है, बिकॉज वी आर नॉट वी आर नॉट preparing the students so that they become the job ready as soon as they come out of the college, because our curriculum is not supporting that. Okay, rather we are not helping it, okay, to happen in a sense, we may say. Okay, and therefore these skills, while they are on the high demand, we need to change, and that is why we say that our NEP 2020 policy talks about the holistic development of the students as such. Okay, so with this also we find that the impact of industrial revolution 4.0 on the role switch, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जॉब रोल बदल रहे हैं हमारे. ओके, एंड जैसे पहले हम कोई जॉब लेते थे तो उसके जॉब रोल्स अभी चेंज हो जाएंगे. मीनिंग फॉर दैट मैटर, जैसे हम अभी हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी का ही जॉब रोल ले लीजिए. ओके, हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी में ऐसा देखा गया था कि जैसे हमारी जनरेशन है या हमारे पहले की जनरेशन है, वो जनरेशन का हमने अगर स्टडी किया तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे टीचर्स ने जो हमको पढ़ाया वही हम पढ़ाते रहे. ओके, बहुत सालों तक, और वही नोट करते रहे. ओके, हमने हमारे टीचर के जॉब में और हमारा अभी जो रोल था उस रोल में कुछ बदलाव नहीं किए. ओके, but now the things are changing. Okay, things are changed. Okay, and therefore we need to basically change our role of a teacher. क्योंकि पहले तो ऐसा था कि टीचर जो कहता है क्लास में उसको क्रॉस करना हमारे पहले जनरेशन में बहुत डिफिकल्ट था. ओके, हमारे जनरेशन में थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन पूछ लेते थे, पर आज की जनरेशन तो पूछती ही है. ओके, and why at all this is happening because of the changes around, okay, around our educational sector. Meaning that जैसे पहले के जमाने में स्टूडेंट्स जो है उनके लिए एक ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, वो है उनका टीचर.
ओके, टीचर ने जो कहा सब्जेक्ट के बारे में वो सही था। Okay, there are many teachers around these students as such. Many teachers in the sense, many knowledge sources are there amongst the teacher, amongst the students as such. मतलब उनके पास में अभी इंटरनेट है, उनके पास में यूट्यूब है, इनके पास में गूगल गुरु है, इनके पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि स्वयं है, एनपीटेल है, उनके पास में कोर्सेरा है, एडेक्स है और खान एकेडमी है। बहुत सारे सोर्सेस अभी बच्चों को मिल रहे हैं जहां से वो इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं, नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। सो टीचर इज नॉट द ओनली और सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, तो इसलिए हम टीचर लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी स्टूडेंट्स जो है हमारे क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रीजन उसका यह है कि उनके पास में बहुत सारे sources of knowledge available है। okay, and therefore we as a teacher needs to change ourselves, है ना, हमारा रोल बदलना चाहिए। हमने वो कैसा रोल बदलना चाहिए, इसी के बारे में हम आज के सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसा रोल हमारा बदल सकते हैं। ओके, और वैसे भी अभी आप देखेंगे तो जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट ये कहता है कि जॉब रोल चेंज हो रहे हैं। 85 मिलियन जॉब्स में बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू ऑटोमेशन बाय 2025। 85 मिलियन, ओके, अक्रॉस। यू विल फाइंड दैट बाय 2025 दोज विल चेंज द जॉब रोल्स। ओके, पर ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ में आपको ये भी एक एडवांटेज है कि 97 मिलियन न्यू जॉब रोल्स विल इमर्ज। ओके, नए जॉब्स आएंगे। ओके, तो नए जॉब जो आ रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना आजकल के जमाने में कि ऑटोमेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये हमारे जॉब ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कभी, बिकॉज नो वन इज बियॉन्ड द ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंड एज सच, राइट। आपके पास में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आर्टिफिशियल रोबोट है, ओके, फिर भी वो रोबोट वही करेगा जो ह्यूमन ब्रेन उनको बताएगा। ओके, या इट मे डू इट फास्टर, इट मे डू इट रिपीटेडली, ओके, विदाउट गेटिंग एक्सर्टेड, वो फास्ट होगा काम उनका, या प्रोडक्शन बढ़ेगा उससे, पर ब्रेन रिप्लेस नहीं होगा, रिपीटेटिव एक्टिविटी कर पाएगा वो, राइट। But it will not have that kind of, I mean, for years to come together, I think so, कि उनके पास में इमोशंस नहीं है, नहीं रहेगा, इनके पास में डिसीजन मेकिंग टू सम एक्सटेंट नाउअडेज जनरेटिव एआई या रिजनरेटिव एआई में अभी आपको डिसीजंस ले रहे हैं, बट इट विल टेक might replace the human brain, and maybe it is at all may not be possible as well to replace the human brain. Okay, so there is no fear of replacing human beings by the humanized robots as such. Okay, and therefore dear all friends, this development has led to the new 97 million new job roles as such. Okay, तो ये जॉब रोल्स कहाँ पे आ रहे हैं? आप बोल रहे हो कि नए जॉब रोल्स आएंगे, तो नए जॉब रोल्स किस फील्ड में आएंगे? तो ये जो फील्ड्स अभी यहाँ पे नरेट किए हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको नए जॉब मिलेंगे, सर्विस सेक्टर्स में आपको नए जॉब मिलेंगे, फाइनेंशियल या पार्डन, हाँ, कोई तो कुछ तो क्वेरी है क्या? हेलो, हाँ, या सो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, हेल्थ केयर है, देयर आर मेनी almost all sectors you will find that the job roles are changing, okay, and new job roles are coming up, okay, and which may also will require a unique blend of technical and soft skills. Okay, आपको टेक्निकल के साथ में सॉफ्ट स्किल भी लगेगा। Okay, also similar report, this was a report by World Economic Forum as well. The McKinsey's report also estimated that by 2030 up to 375 million workers globally may need to switch roles due to automation. Okay,
very interesting and needs to be known to the teaching fraternity, so that we can share with our students, so that they get prepared for the they get prepared for facing the new challenges in their life which are due to come. Okay. So also opportunities for the data scientists are expected to grow by 31% from 19 to 20. Data scientist मतलब आपने big data का नाम सुना होगा. Big data nowadays, because of the internet and everywhere you'll find that everyone is sharing their data, and a lot of data is available on clouds, internet. There are many things, no, and therefore you need to pick up the required information from the एक समंदर के इसमें से आपको एक ही बूंद आपको लेना है जो आपके काम का है. Okay, and therefore you need to apply a lot of intelligence, lot of algorithms, lot of parameters there, so that you get the required information out of the sagar. Okay, and therefore data scientist की requirement बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है. New branches of education are coming up: data science engineer, artificial intelligence engineer, and blah blah blah, right? And therefore it is going to outpace the average growth rate for all jobs basically. As well, you will find that cyber security ventures predicting that there will be 3.5 million unfilled cyber security jobs by 2025. So there is a lot of opportunities available. Ample opportunities are available in the market. पर आपको वो skills acquire होना, वो skills आने चाहिए जो demanded है, तो ही आपके education का फायदा हो, right? And therefore we need to sensitize our students on those skills as well. And therefore the role of a teacher is very important nowadays. Unless until teacher gets convinced with this kind of developments there, how come they will help the students to acquire this knowledge, I mean this kind of skills there as a part of their education as such, right? So with this background, therefore it is always said that there is urgent need of 21st century skills. Okay, 21st century skills में बहुत सारे skills जैसे हमने discuss किए हैं. It is just a repetition, but I will just go through this slide very fast. As we discussed there, that creativity, innovation, critical thinking, learning to learn, information literacy, ICT literacy, communication, collaboration, citizenship, cultural awareness, personal and social responsibility. These are all the 21st century skills required along with your technical knowledge as such. I mean technical skills as such. Okay. So with this particular background, let us move ahead and let us NAP 2020. Okay. So NAP, I see, dear all friends, I'm just trying to share whatever I feel like sharing with you. But at any moment of time, you feel it is a repetition, you just let me know, so that I will skip that particular point and then move ahead in the presentation. Okay. Hope that you are still with me, all of you. NAP yes, sir. We're all there with you. Yeah. So thank you. So NAP 2020 is a very comprehensive policy to meet the 21st century education needs. Okay, curricular adoption, technology, vocational education, and rethinking the evaluation patterns as such are the main priorities of the education policy 2020. Okay, and this 66-page document has very much engrossed towards the स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, प्रोवाइडिंग दी स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन. उसके लिए ही ये पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा फोकस है और फैकल्टी के लिए इसी काफ़ी कुछ चीज़ें कहती है. जैसे कि ये पॉलिसी में आप आइटम नंबर 13.4 इस ये पैरा का 13 पैरा का जो पैरा है टाइटल्ड एज मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड
फैकल्टी के बारे में 3.4 आइटम में ये कहती है पॉलिसी कि फैकल्टी विल बी गिवन द फ्रीडम टू डिजाइन देयर ओन करिकुलर and pedagogical approaches within the approved framework, including textbook and reading material, selections, assignments, and assessments. Empowering the faculty to conduct innovative teaching, research, and service as they see the best will be a key motivator and enabler for them to do truly outstanding creative work. ये एक्सपेक्टेशन है NEP 2020 की पॉलिसी के फ्रॉम दी टीचिंग फ्रेटर्निटी, और टीचिंग फ्रेटर्निटी को इस तरीके का फ्रीडम दिया गया है, so they can design their own curriculum to teach, so that they can provide whatever the students need as such. To that extent there is a freedom, so that ultimately it becomes the student centric education as such. And also you will find that there are many changes happening. 21st century classroom जो हम देखते थे अभी तक वो क्लासरूम नहीं रही है. There is no limit to a physical entity, time and space. आप एनी टाइम एनीवेयर, मतलब आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, घर पे भी एजुकेशन ले सकते हैं बैठ के, आपको टाइम का बंधन नहीं है. सो द कंसेप्ट ऑफ टिपिकल क्लासरूम is changing nowadays. They're all they're all colleagues. We need to understand this very seriously. अभी हम क्लास में से ही जाके पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है. You have to be on your toes all the time. Okay, because students, if they demand, then you should also make yourself available to their demands. Okay, importance of skills and applied learning. It's about the skills and not the degrees. स्किल के बारे में आपको अभी ज़्यादा सोचना है, ना कि डिग्री के, क्योंकि देखिए स्किल, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको. सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, जब वो क्रिकेट में आए थे तो मेरे ख्याल से 10वीं पास थे या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन क्रिकेट, बट ऐसा कहते हैं लोग कि वो 10th में वगैरह थे शायद. तो पर उनके पास में क्या था, उनके पास में क्रिकेट का स्किल था. ओके, and that is why he has become the world renowned personality in the cricket world as such. Okay, पर उनके पास में कोई डिग्री नहीं थी. So डिग्री उनके लिए कोई मायने रखी क्या, नहीं रखी है. There are many such examples there in this world that कि वो स्किल्स होना चाहिए तुमको. जैसे माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, ओके, या मार्क जुबरबर्ग है, फेसबुक वाले, उनको कहते हैं कि दे वेर दी ड्रॉप आउट्स. ओके, मतलब उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री नहीं कंप्लीट की थी, पर उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतना बड़ा इनोवेटिव एक चीज पूरे दुनिया को दी है माइक्रोसॉफ्ट ने. ओके, तो ये क्या था, उनके पास में स्किल्स है, उनके पास में क्वालिटीज है, उनके पास में कुछ तो इनर ड्राइव है, वो उन्होंने दे हैव नरिश्ड दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, उनके पास में लीडरशिप क्वालिटीज है. ओके, लीडर हैज टू बी अ इनोवेटिव लीडर. ओके, जिसके पास में इनोवेशन नहीं है वो लीडरशिप नहीं कर सकता है. तो लीडर हैज टू बी इनोवेटिव. सो वो सब क्वालिटीज उनमें थी, एंड दैट इज व्हाई दे कुड प्रोवाइड सच अ वंडरफुल थिंग टू द वर्ल्ड एज सच. इसीलिए ये हमारा जो कंसेप्ट अभी टीचिंग और इसका है, वो खाली डिग्री लेके ही बहुत नॉलेज आएगा ऐसा नहीं है. एंड दिस इज नॉट अ टाइम बेसिकली फॉर गेटिंग द डिग्रीज. आप छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स लेके, डिप्लोमा लेके, यू कैन गो ऑन योर जॉब वर्क एज सच, और उसमें प्रोग्रेस लेके, बिकॉज NEP 2020 टॉक्स अबाउट दैट इट इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट कि इसमें आपको हमेशा कुछ नए चीज़ें एक्वायर करते रहना चाहिए. ओके, नए स्किल्स आते रहेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल हमारे टीचिंग फील्ड में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है. ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम जिस वक्त पढ़े थे उस वक्त हमको कभी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या वायरलेस कम्युनिकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट का कोई सब्जेक्ट नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था, कोई यूनिट नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था हमारे सिलेबस में. फिर भी अगर आपको पढ़ाना पड़ेगा, सो टू दैट एक्सटेंट वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड. ओके, उसमें हमारे प्रमोशंस भी उसमें इंटीग्रेट किए हैं ये कोर्सेज की वजह से, बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, एंड दैट कैन नॉट बिकम द ओनली क्राइटेरिया बेसिकली.
हमको हमारा जॉब रोल जस्टिफाई करना है उसके लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये समझना। टेक्नोलॉजी हमको समझना चाहिए। बहुत सारे पहले हम देख रहे थे कि जब आईसीटी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेस लेने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हमको कहता था, तो आईसीटी के लिए तो बहुत लोग के मन में फियर थी, डर था। हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए जब कोर्सेस लेते थे फेस टू फेस, तो कई लोग जो है कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए डरते थे। कई लोग फेंटेड, मतलब उनको चक्कर आके भी गिर के हमने हॉस्पिटलाइज किया है। प्रीति मैडम कैन इज अ विटनेस, शी कैन शेयर विद you कि हमने to that extent that kind of fear was there in the mind about the ICT, okay? पर अभी हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, okay? It is not about preparing for the examination, मतलब एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना या एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना ही हमारा एजुकेशन का पर्पस नहीं है, नहीं रहना चाहिए, ओके? ट्रांजिशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क होना चाहिए, उसमें लर्निंग आउटकम्स बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि हमारा एजुकेशन आउटकम बेस्ड होना चाहिए, ओके? टीचर्स एंड ट्रेनर्स टू प्ले क्रिटिकल रोल, जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि रोल ऑफ अ टीचर, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए समझने की जरूरत है, ओके? सो विद दिस बैकग्राउंड आई थिंक वी कैन स्पेंड सम टाइम. We have still half an hour with us, so NEP transformative in a sense कि आप इसको डिसरप्टिव भी कहते हैं। डिसरप्टिव पॉलिसी NEP 2020 को लोग कहते हैं। डिसरप्टिव माने ऑल ऑफ ए सडन चेंज, ओके? जैसे कोई ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, एक यूनिट बदला है, 2 यूनिट बदला है, एक आधी पॉलिसी बदली है, दूसरी पॉलिसी बदली है, तो हम उसको कहेंगे कि ग्रेजुअल चेंज है। पर NEP 2020 में ये एक्सपेक्टेशन है कि देयर इज अ डिसरप्शन, ऑल ऑफ ए सडन थिंग्स आर चेंजिंग, ओके? पूरा एजुकेशन का लैंडस्केप है, डायनामिज्म है, वो चेंज हो रहा है, ओके? एंड देयरफॉर फॉर अस एज अ टीचिंग फ्रेटर्निटी इट इज नॉट डाइजेस्टेबल, ओके? हमको ये ठीक नहीं लग रहा है, या हम इसको रजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन देयर आर चेंजेस हैपनिंग, नो, ओके? अगर ग्रेजुअल रहता तो हो जाता, पर देयर वाज अ नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि ऑलरेडी वी वेर लैकिंग सो मच, ओके? Therefore, unless and until there is out, right, and therefore it is considered as a transformative policy or disruptive policy, और इसलिए हम लोगों को इसके इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ हो रही है। पर any policy, it will take 5-6 years or maybe around 10 years or so to get fully matured, okay? इसके fruits आपको तभी मिलेंगे जब ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगी और मैच्योर होगी, उसके बाद में इसके फ्रूट्स हमारे जनरेशन को मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं तो हमको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, ओके? सो इट ऑल्सो हैज अ पोटेंशियल रिमूविंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन। मतलब हमारा जो जनरल एजुकेशन है और वोकेशनल एजुकेशन, जो हमारा और हमारे समाज का वोकेशनल एजुकेशन की तरफ देखने का एक जो तरीका था, इन्फीरियर था। मतलब हम उसको एक इन्फीरियर एजुकेशन समझते थे कि ITI में जा रहा है, उसको कुछ नहीं आता होगा इसलिए ITI में जा रहा है। ऐसा नहीं है, इट इज़ नीड ऑफ द आवर बेसिकली। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक भी है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स का इंटीग्रेशन हुआ है, एक दूसरे में एनक्रोचमेंट हो गया है सभी सेक्टर्स का। तो इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी भी होना चाहिए, होलिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए। देयर हैज टू बी प्रोविजन फॉर मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्रेडिट्स होना चाहिए। हर एक्टिविटी आप जो करेंगे, लर्निंग एक्टिविटी आई मीन टू से, वो एक्टिविटी को क्रेडिट मिलेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज़ अ वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट, यहाँ पे पॉलिसी में दिखाई गई है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, बट इफ यू फील लाइक आस्किंग समथिंग यू मे आस्क लेटर ऑन, ओके? रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इसमें है। एजुकेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब कोई बच्चा बहुत होशियार है, आपको ये भी पता होगा कि UGC हैज डिक्लेयर्ड दी फ्लेक्सिबल डिग्री टाइमिंग,
ओके, सकते हैं या रिड्यूस्ड टाइमिंग डिग्री प्रोग्राम में जा सकते हैं, मतलब आप 3 साल की डिग्री 2 साल में या 3 साल की डिग्री 4 साल में कर सकते हैं. So there is a provision now. UGC has very recently declared the SOPs, okay, for the flexible degree timings as such. Okay. इसमें रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग भी है, मतलब आपके पास में कोई पूर्वाश्रम से कोई एक नॉलेज है या स्किल है तो उसको भी रिकॉग्निशन मिलेगा. जैसे हम देखते हैं बहुत सारे गाँव में हमारे कोई कारपेंटर होता है, कोई स्मिथी का काम करता है, तो उनके पुरखों से वो उनके पास में कला रहती है, पर वो कला का उनको कोई एक सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, पर उनके पास में बहुत अच्छी कला है, तो उसको भी रिकॉग्निशन मिलेगा, उनको भी चांस मिलेगा कि बेस्ड ऑन दैट सर्टिफिकेट, दैट असेसमेंट, दे विल हैव अ चांस टू कम इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, और वो अपना यूजी, पीजी, 10, 12, पीएचडी सब कुछ कर पाएंगे ये पॉलिसी की वजह से. So that kind of that kind of flexibility is provided by this NEP 2020. Also internationalization of education, जैसे आपको भी पता होगा कि बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारे इंडिया में आएंगे, हमारे यूनिवर्सिटीज बाहर देशों में जाएंगे, तो एक ग्लोबल जो हमारा एजुकेशन का एक पैटर्न है वो ग्लोबल रीच उसमें आएगा, तो देयर विल बी लार्ज स्केल एक्सेप्टेंस टू अवर पॉलिसी एज सच, और हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो उनको भी विदाउट लॉट मेनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे कैन डायरेक्टली गो टू दी colleges, so to say, or they can directly get the admissions as such. Okay, digital online learning, multilingualism, use of technology, मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी तो आपको यूज करना ही करना है, विदाउट दैट देयर इज नो सर्वाइवल. ओके, और मल्टीलिंग्विज्म, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ तो यू माइट हैव नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द मतलब हमारे जो रूरल एरियाज में है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इज देयर, दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश और वट एवर, दे कैन ओनली स्पीक द रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज में भी उनको नॉलेज मिलना चाहिए, ये भी एक प्रोविजन उसमें है. प्रोविजन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एनी टाइम एनीवेयर, ये भी प्रोविजन इसमें है. सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी बनाया गया है, और वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बेसिकली हेल्प्स यू in the implementation of in the policy NEP 2020. So with this kind of background, let us now focus on role of a teacher. Okay, so जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की वजह से हमारे जो जॉब रोल्स चेंज हो रहे हैं, उसमें टीचर का भी जॉब रोल चेंज हो रहा है, राइट? एंड देयरफॉर teacher is now no more called as a teacher. Okay, teacher is termed as a facilitator. Okay, so facilitator के क्या रोल है, क्या कर्तव्य है, वो हम देखना चाहेंगे इसमें. Okay, so role of a teacher in skill based learning in the okay, so you will find that in the transition from knowledge focused education to skill based learning. Okay, the role of teacher has undergone a significant evolution. Teachers are no longer limited to being transmitters of information, मतलब खाली हमको information देना ही नहीं है, but have become essential facilitators and mentors in the acquisition of skills. ये रोल है हमारा, right? So that role needs to be understood by all of us. They are all participants. So facilitator of skill development. इसमें क्या हम हमारे से एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि आप जो नॉलेज दे रहे हैं, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो तो बहुत सारी जगह से तो स्टूडेंट्स को मिल रहा है. ओके, एंड कंफर्टेबली दे कैन गेट दैट पर्टिकुलर नॉलेज और दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस सोर्सेस. बट हमारा रोल क्या है? हमारा रोल यह है कि फैसिलिटेशन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस, प्रॉपर रिसोर्सेस. आपको पहले रिसोर्सेस का स्टडी करके प्रॉपर रिसोर्सेस लड़कों को देना है. You have to create opportunities for the practice of the students. Constructive feedback आपको देने हैं. Okay, so the somehow or the other you have to lift
their learning journey as such. Okay. इस तरीके से आपका रोल बदल रहा है. गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रैक्टिकल स्किल्स आपको करना पड़ेगा. उसके लिए हमको पहले ओके एंड स्किल्स रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर्स. सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं उसके रिलेवेंट स्किल्स कौन से हैं जो डिमांडेड है मार्केट में, वो हमको उसको देना पड़ेगा. ओके एंड क्यूरेट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस that enable students to develop and refine these skills. Okay, so to that extent we need to change our role. Okay, मतलब यहाँ पे जो मैंने एक कार्टून बताया है आपको, इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये दिखाया गया है कि एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत अच्छा कोट है. इस वेरी यू नो हमारे एजुकेशन सेक्टर को बहुत लागू होता है, क्योंकि इसमें आप मोटा मोटी देखेंगे कि one size does not fit all. Okay, what Albert Einstein says that everybody is a genius. Okay, but if you judge a fish whole life believing that it is stupid. Okay, हमारे टीचर को ये समझना चाहिए कि हमारे पास में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे जो है वो हर तरीके से होते हैं. मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. कुछ रूरल में से आता है, कुछ अर्बन में से आता है, कुछ का फैमिली का बैकग्राउंड अलग है, किसी का अलग है, किसी का पोटेंशियल अलग है, किसी का यू नो सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज उसको अलग है, प्री रिक्विजिट किसी ने किए रहेंगे. कोई फास्ट लर्नर है, कुछ स्लो लर्नर है. देयर इज अ डिजिटल डिवाइड अमंग्स द स्टूडेंट्स. तो ये सब अपने टीचर को इसकी पहले तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, या उसको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, एसेस करनी पड़ेगी सिचुएशन, and then you have to come out with the tailor-made solution for the individual student as such. To that extent, the role of teacher has to be there. Okay, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि हर कोई होशियार है, हर किसी को बुद्धिमत्ता है, पर आप एक ही लाइन से, एक ही स्किल से सबको जज करेंगे. जैसे फिश को कहेंगे कि आप क्लाइंब मतलब आप झाड़ पे चढ़ने की कोशिश करो, या उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे झाड़ पे कैसे चढ़ेंगे, तो वो जिंदगी भर कभी भी वो स्किल नहीं आएगा फिश को झाड़ पे चढ़ने का. और उसको लगेगा कि मैं स्टूपिड हूँ, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उसमें, हो ना. तो बच्चे अपना एजुकेशन छोड़ देंगे उसमें, दे विल बिकम अ ड्रॉप आउट्स. सो हमारे टीचर का हमारे टीचर का ये रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमको ये समझने की जरूरत है. ओके, सो विद दिस we'll just move ahead and you know try to understand the teacher as a facilitator, other components of it. ओके, कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको देना है. जैसे मैं ये एग्जांपल में बता रहा था कि टेलर देयर अप्रोच टू मीट द डाइवर्स learning needs of students, design personalized learning plans that align with the students' strength and weaknesses. Okay, और ये artificial intelligence can help you in this sense. Okay, artificial intelligence आपको इसमें help कर सकता है. Okay, and in many ways basically the AI can play role in the in offering the education. Okay, offering the education which is aligned to the students' strength and weaknesses. Okay, so that we will discuss, and how to do it as well also we can discuss. So therefore fostering critical thinking and problem solving is also a major role. जैसे कि हम ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करें जिसमें posing the challenging questions, engaging students in discussion, okay, assigning projects that require analysis and innovative solutions. तो इसमें उनका critical thinking, logical thinking, analyzing power, you know, approach to the problem, collaboration, ये सब उसको बढ़ावा मिले. इस तरीके की एग्जामिनेशन इसमें very you know noticeably you can find the difference between the education offered in IITs and our typical universities. IIT में open book test होती है,
या उनके ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी रहता ही है, पर उनके ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जैसे स्टूडेंट्स को थिंक करना पड़े, ओके, दे हैव टू अप्लाई देयर ब्रेन, ओके। हमारे एजुकेशन में क्या हो रहा है, हम ऐसे क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स उनको उनका नॉलेज ओमिट कर देते हैं, ओके। उनका नॉलेज जो भी है मगअप किया हुआ वो लिखना है पेपर में, राइट शॉर्ट नोट्स ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से, उसमें कहीं भी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम अगर स्टूडेंट्स को डेवलप करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ओके। गाइड द स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली, इवेल्युएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली, अप्लाई देयर नॉलेज टू एड्रेस द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, राइट। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उनको अप्लाई करने का आप बोल सकते हैं, जैसे एम्प्लॉइंग देम, फॉर एग्जांपल कि आप स्टूडेंट्स को एक इंडस्ट्री के साथ में टाई अप करके वो इंडस्ट्री का जो भी वर्क कल्चर है उसको कुछ दिन काम करने के लिए वहाँ पे भेज सकते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट उनको एक मौका मिलेगा हाउ टू हैंडल द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एज सच, राइट। प्रमोटिंग कोलैबोरेशन एंड expectations from the facilitator, basically. Now we will not call it as a teacher, but it is a facilitator. So skill-based learning often involves collaboration and teamwork. Facilitators has to create opportunities for students to work together on projects, encouraging effective communication and cooperation. Nowadays, it is not a era of competition. It is the era of collaboration, dear all friends, right? So guide students on how to express ideas, actively listen, कैसे हम दूसरे को सुने, okay, and respect differing the perspectives, basically. So all those things, all those qualities we need to imbibe as a part of personality of our students as such. The mentoring and guidance, a rapport of trust, and enhances the students' confidence and motivation to acquire new skills. Offer insights, advice, encourage them, helping students navigate challenges and setbacks. Real world application of knowledge जो मैंने अभी डिस्कस किया है, emphasizing lifelong learning, उनमें एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, विलिंगनेस आना चाहिए, इस तरीके का, मतलब हमारा जिस तरीके का उनको हैंडल करने का तरीका रहेगा उस तरीके का उनका एक माइंडसेट तैयार होगा, एंड दे विल बिकम द प्रोएक्टिव लर्नर्स, ओके। दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ओके। यू हैव टू इंस्टिल द वैल्यू ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग अमंग्स द स्टूडेंट्स। इस तरीके का हमारा एक अप्रोच स्टूडेंट के प्रति होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वी फील लाइक शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर फॉर एनहांसिंग द स्किल्स अमंग द students as such, right? So ये सब होने के लिए हम सब चीजें टीचर से एक्सपेक्ट करेंगे या फैसिलिटेटर से ही एक्सपेक्ट करेंगे? अभी जो करंट जनरेशन ऑफ टीचर्स, हम टीचर्स ही कहेंगे अभी फिलहाल के लिए, तो हमारे करंट जनरेशन ऑफ टीचर्स जो है उनसे ये सब रोल चेंज का एक्सपेक्टेशन करना गलत रहेगा, बिकॉज you need to basically sensitize them, okay. You have to develop the competency level of the teachers through some programs as such. इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। आपने सभी लोगों ने दिल्ली के स्कूल्स के बारे में सुना होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली कुछ साल पहले उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, या दे वेयर लैगिंग एज कम्पेयर टू द प्राइवेट स्कूल्स इन दिल्ली। तो क्या किया गया उसमें, वो सब टीचर्स जो है स्कूल्स के उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, ओके। ट्रेनिंग कहाँ पे भेजा गया? सिंगापुर भेजा गया, फिनलैंड भेजा गया, जहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वहाँ पे भेजा गया। एंड देन आफ्टर कमिंग बैक
from the training, they have started implementing those approaches here in the schools of Delhi. Okay, and you find a lot of transformation has happened in the Delhi schools, government schools, or government Delhi schools abhi are the preferred destinations for many students. Okay, तो at par with other schools के साथ में वो आ गए हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए. So therefore this policy also recommends, NEP 2020 recommends or emphasizes on the mainstreaming vocational, but there exists a gap between recommendation and implementation due to lack of availability of the trained vocational faculties. Okay, and therefore there is a need for setting up specialized vocational training institute and use of technology for teacher training. Okay, these institutes to offer programs in pedagogy, industry relevant skills and technology integration. हम पहले तो ये हमारे टीचर कलीग्स के साथ में इसका शेयरिंग होना चाहिए, इसका डिस्कशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, यूज ऑफ वेबिनार, सर्टिफिकेट कोर्सेज, सिमुलेशन टूल्स, मूक्स, वर्चुअल वर्कशॉप्स, ये सब करना जरूरी है. As well incentivizing the teaching careers in vocational education. मतलब vocational education में या skill education में जो भी टीचर है उनको उनका प्रेस्टीज मिलना चाहिए, ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनको होना चाहिए, उनका एक क्लियर करियर पाथ मिलना चाहिए. नहीं तो हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि मेन स्ट्रीम में जो रहते हैं उनको ही आगे का प्रोग्रेस करियर पाथ मिलता है, उनका ही प्रमोशन होता है, उनका ही क्या होता है, और अलाइड जो सब्जेक्ट्स है उसमें उनको कुछ प्रोग्रेस नहीं रहता है. तो दैट शुड नॉट हैपन. डियर ऑल फ्रेंड्स, ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस पर्टिकुलर ऑकेजन कि अभी करियर ग्रोथ या नए अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए यूजीसी के रेगुलेशंस आ रहे हैं. ड्राफ्ट रेगुलेशन अभी यूजीसी ने फ्लोट किए हैं उनके साइट पे, एंड इट इज आस्किंग फॉर दी सजेशंस एज सच. आपने देखा होगा या कितने लोगों को पता है कि नए ड्राफ्ट रेगुलेशंस आ रहे हैं? मे आई नो फ्रॉम यू. हेलो डियर ऑल पार्टिसिपेंट्स, आई एम आस्किंग यू. हेलो डियर ऑल पार्टिसिपेंट्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So can you let me know about my question? Yes, sir. Hello. Yeah, can you let me about my question? About the joining of the teachers, sir. Yeah, actually I was trying to ask you कि नए ड्राफ्ट रेगुलेशन यूजीसी के आ रहे हैं फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द टीचर्स. Yes, sir. इन द कॉलेजेस. Yes, sir. है ना, जैसे अभी अपॉइंटमेंट के ड्राफ्ट रेगुलेशंस कब के थे? 2018 के, राइट? 2018 में अभी 25 के आ रहे हैं सर, 2025 के आ रहे हैं सर. अभी आ रहे हैं ना. आ रहे हैं ना, तो आ रहे हैं, तो आपको पता है ना इसके बारे में? सर, डिड दे आस्क रिकमेंडेशन फॉर दैट ऑन दैट? उन्होंने इस पे कुछ रिकमेंडेशन मांगे हैं क्या सर? हाँ, उन्होंने ये ड्राफ्ट रेगुलेशन के बारे में कुछ सजेशंस मांगे हैं, क्योंकि इट इज इन द ड्राफ्ट फॉर्म नाउ. ओके, और अभी उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट आपने अगर पढ़े होंगे तो क्या नोटिस किया है आपने नए ड्राफ्ट रेगुलेशंस में? कैन एनीबडी लेट मी नो? Fine. If time permits, we will discuss on that particular issue later on. But otherwise, if I talk on that, it will be a digression from the main subject. So I will just proceed with about the preparing our teachers for handling the new type of education as such. Fine. So I was trying to tell you that कि कुछ vocational training institute होना चाहिए
टीचिंग करियर्स इंसेंटिवाइजिंग होना चाहिए. As well, there has to be clear career path होना चाहिए. Focusing on continuous professional development is expected. Peer learning and mentorship of the, मतलब hand holding हमारे टीचर का होना चाहिए. Integrating vocational education and strengthening collaboration. To some extent, you will find that there will be the requirement of dual skill teachers, जो academic और vocational में भी एक्सेल कर सके, ऐसे टीचर की डिमांड हो सकती है. To collaborate with the international vocational institutions and adopt the best global practices, ये भी हमारे टीचर का एक कर्तव्य रहेगा. Enhancing vocational education through sustainable collaborations, partnering with industries to design training that equip teachers and latest practices, ये होना चाहिए. Implementing apprenticeship models, मतलब to some extent, if required at all, teacher may be deputed for training in the industries, and after acquiring those skills and knowledge, they can come and teach the students. To that extent, government has to come forward and sensitize the teachers as such. Okay, so that the purpose of NEP 2020 is served in right spirit and mind as such. But there are challenges as well, dear all friends, कि हमारे टीचर्स अभी क्या फेस कर रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास में, स्पेशली इन द अंडर डेवलप्ड और रूरल एरियाज. रेजिस्टेंस टू चेंज, ये एक ह्यूमन का अप्रोच बोलिए या एक हमारा स्वभाव वैसा रहता है. So that kind of thing is happening. Time constraints, balancing academic and skilling or skill building objectives within limited time frames. Lack of supports. Many times you find that you have the wish and will to do something, to contribute something, to do some out of box thinking, to implement new ideas in your college or institute, but institutional support is lacking to some extent. ऐसा भी कई जगह देखा है. So these are all the challenges which may come across, but one can overcome those challenges there. And therefore, as well, government on their own also taking many initiatives at their level, like National Skill Development Mission एक प्रोग्राम लिया है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई है. अटल इनोवेशन मिशन है, जिसमें आपको फंडिंग मिलता है कॉलेजेस को. अटल थिंकरिंग लैब्स के लिए ATL या इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए मिलता है, या अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मिलता है. सो दैट टू प्रमोट द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज सच. डिजिटल इंडिया भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत सारे कोर्सेस कर सकते हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो है ही हमारी. सो देयर आर मेनी थिंग्स बेसिकली एट द गवर्नमेंट लेवल. They are also taking it very seriously and after it basically. Okay. Also government has taken the initiative setting up some skill universities. आपको पता होगा तो स्किल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में एक सेटअप हो रही है जिसका नाम टाटा स्किल यूनिवर्सिटी है. ओके, सो स्किल यूनिवर्सिटी और हमारी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी इसमें काफ़ी फ़र्क है. Skill University is offering courses which are skill-based, job-oriented, and applied in nature. Okay, they have higher job potential. Skill universities award degrees that will confirm the National Skill Qualification Framework (NSQF) हम जिसको कहते हैं. Okay, so there are many things changing at government level as well. Okay, there are some public skill universities, some private skill universities are also coming up, right? So therefore there is there are a lot of changes basically in support of NEP 2020 happening. Okay, and therefore in this presentation what are the recommendations and way forward we can look into. Okay, so we can say that there is a urgent need of teacher training. फ्रिक्वेंट वर्कशॉप एंड सर्टिफिकेशन इन इमर्जिंग फील्ड्स जरूरी है. पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स
फॉर स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल्स होना चाहिए. कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज फॉर अप टू डेट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे टीचर के लिए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है. करिकुलम इंटीग्रेशन एम्बेडिंग स्किल बेस्ड एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर कोर्स वर्क होना चाहिए. हमको इंडस्ट्री के साथ में कोलैबोरेट करके नए करिकुलम डेवलप करना पड़ेगा. एंड यू आर विटनेसिंग, यू माइट हैव बीन विटनेसिंग nowadays many corporate or industrial houses, they are coming forward and setting up the educational campuses many places. Okay, like SCL का campus है, बहुत सारे जगह है वैसे भी. तो you know the NEP 2020 is promoting such activities there, and government policies are promoting basically for the for the corporate sector to come up or closely get associated with the education sector as such, so that overall the attempt is to reduce the gap between academia and industry as such, right? And therefore in the conclusion part we can say that the teachers are architects of skilled society, playing transformative role in preparing students for modern challenges. Skill development should be at the heart of education, combining academic rigor with practical applications. Call for collective efforts from educators, policymakers, and industries to create a skill-oriented education ecosystem. So, in conclusion, we can say that with this, remarks, I come to the end of this particular presentation. And then we will devote some time for question answer. In case time permits, or if you are still interested, I can share some of the inspiring stories with you, which are videos basically, so that you get motivated or encouraged for taking some steps in that direction. Okay, the direction in which video is sharing with you, right? So with this, I am coming to the end of my presentation. Thank you so much for your silent listening towards the session. Thank you so much once again for giving me an opportunity to sharing my views on this particular issue. So I'm stopping this presentation and back to the question answer. येस, थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. बोला सर, काही प्रश्न आहे? थँक्यू सर. Yeah, well, let me get me some queries from your side. सर, एक सजेशन ये है कि जो फैकल्टी एक्सचेंज जो प्रोग्राम होना चाहिए, हाँ, तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहाँ भी दिख रहा नहीं है. नहीं, अभी देखिए फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम यू मीन टू से, हाँ, इन द यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज. सपोज अभी तुम्हारा जो भी लेक्चर था बहुत ही अच्छा था, हमको पूरा समझ में आया. अभी तुम्हारे जैसा लेक्चर अगर हमारे जो भी तालुका प्लेस के कॉलेजेस है, उसमें अगर बच्चे के सामने होगा तो वो बहुत इंस्पायर होंगे ना. हाँ, वैसा तो हो रहा है. जैसे अभी ये जो प्रोग्राम है NEP 2020 सेंसिटाइजेशन ओरिएंटेशन सभी फैकल्टी के लिए कर रहे हैं, ये मिशन मोड नहीं, ओरिएंटेशन तो है सर. ये फैकल्टी जो है समझो एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए NEP में, क्योंकि जैसा अपन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम रख रहे, अपन स्टूडेंट सेंट्रल पूरा बोल के चल रहे, मगर जो फैकल्टी इधर उधर होना है, जो भी रेगुलर फैकल्टीज है, हाँ, तो का जो एक्सचेंज है ये हो गया तो स्किल्स जो मेरे में जो स्किल्स है तो वो मैं दूसरे कॉलेज में जो बताऊंगा, तो उसके लिए जो कुछ तो भी प्रोविजन चाहिए. हाँ सर, एक्चुअली कैसा है ना, बाय पॉलिसी नीड नॉट टू, इट नीड नॉट टू हैपन थ्रू पॉलिसी. हाँ, एक्चुअली आप जैसे अभी से फॉर एग्जांपल आपका कोई कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, वो कॉमर्स का डिपार्टमेंट या कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो है, दे कैन साइन अ MOU विद से IIM नागपुर. ओके, या फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी कॉलेज है, तो टेक्नोलॉजी कॉलेज है तो दे कैन साइन MOU विद NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या IIT बॉम्बे या अदर IITs, या कोई दूसरे कॉलेजेस है वो उनके फील्ड में रेप्यूटेड जो कॉलेजेस है उनके साथ में
MOU करके फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं। एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया था बीच में, आई डोंट नो फॉर श्योर कि वो नॉन प्रोफेशनल कॉलेजेस को आया था या नहीं, बट फॉर टेक्निकल कॉलेजेस देयर वाज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट, और उसमें फैकल्टी एक्सचेंज का प्रोग्राम था, जिसमें फैकल्टी को अलाउ किया गया था कि वो दूसरे जगह जाके स्किल एक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें और अपन ऐड कर सकते हैं कि से पॉलिसी इज आल्सो रिकमेंडिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कोई इंडस्ट्री में अच्छा कोई बंदा है और उसको इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज है या स्किल है, तो उसको लाके अपने बच्चों को उनके जरिए आप पढ़ा सकते हैं नए स्किल्स, सो दैट दे आर इंस्पायर्ड एंड गेट अ प्रॉपर नॉलेज। ऐसा भी कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू डू इट, बट वी शुड बी बेसिकली विलिंग टू डू इट, राइट? सो आप अनम्यूट करिए सर, आप बोल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए। सर यस, अगर मेरा मतलब है यूजीसी अगर ये प्रोग्राम अपने इसमें ले रही और यूजीसी ने ये अनाउंस किया प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो उसका इसका रिजल्ट अच्छा आएंगे, ऐसा हमारा ये अभी सब मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो लोग होना चाहिए, ये बड़े कॉलेज है, छोटा कॉलेज है, ऐसा जो अपन कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन नहीं रहेंगे, ऐसा मतलब मेरा। हाँ बराबर है। इसमें ना सर जैसे कि कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ट्रेन द ट्रेनर्स नाम का कोई प्रोग्राम होते हैं, जिसमें मतलब ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, और वो ट्रेनर जाके बैक टू देयर कॉलेज दे कैन कंडक्ट सेशंस ऑन, जैसे कि अभी आप NEP 2020 पे सेंसिटाइज हो रहे हैं, तो आप जाके अपने कॉलेज में जाके और सेशंस ले सकते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट आल्सो इट कैन गेट परकोलेटेड, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये तो समझो अपन जो भी करेंगे अपने अपने स्किल से करेंगे ना। हाँ, मेरा मतलब है ये प्रोग्राम यूजीसी अगर उनके अंडर ले रही है। यू आर वेरी करेक्ट, मतलब आपको हॉर्सेस माउथ से सुनना है, जैसे कि जिसने पॉलिसी जैसे बनाई है या जिन्होंने यस ऐसा करेक्ट, यू आर वेरी और आपका सुनने से बहुत, यानी हमें जो भी थैंक बोलना चाहिए उसके आगे डबल थैंक बोलते सर आपके लिए। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए, क्वेरी है तो पूछिए। सर एक क्वेश्चन, एक थोड़ा डाउट था सर, ये जो फ्रेमवर्क बना, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क अपना सभी इसका फैकल्टी का, यानी जैसे ह्यूमैनिटी हो गया, तो ये बनाया, यानी समझो महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इधर दिया कि आप सभी विद्यापीठों को कि आप इस स्ट्रक्चर में उसको डेवलप करो अपना कोर्स, और यहाँ के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है वो अपने तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके वेरीफाई हो रहा क्या? कहीं तो भी वेरिफिकेशन होना था कि जिन्होंने जो बनाया ड्राफ्ट उनके हिसाब से हो रहा क्या? नहीं तो मैंने अभी 2-4 यूनिवर्सिटी के कोर्सेज देखे हैं, सिलेबस देखे उनके, तो यानी एक ही सब्जेक्ट या VC हो रहा, दूसरी जगह ACC हो रहा, कई जगह AEC हो रहा, तो ये तो आखिर वही बात हो रही ना? हाँ वही हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना सर, आई टेल यू, हम जब भी काम कर रहे हैं जैसे हायर लेवल पे, मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज हो गया, एकेडमिक काउंसिल हो गया, या मैनेजमेंट काउंसिल हो गया, यूनिवर्सिटीज में या प्राइवेट कॉलेज होगा तो उनका भी कुछ बोर्ड्स हो गए, तो वो लेवल पे एक्चुअली प्रॉपर सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है, सो दैट दे टेक इट टू दी राइट स्पिरिट एंड राइट फिलॉसफी जो उसकी है। अगर हम तो लिपापोती कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा लेके हम बना सकते हैं, बट इट विल नॉट सर्व द पर्पज। एंड if at all somewhere it's happening, I think we will be held responsible and we will be the culprit of the future society, right? तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो that is very wrong, क्योंकि इसके लिए UGC ने NHEQF
National Higher Education Policy Framework, NHEQF, qualification framework basically, NHEQF, National Higher Education Qualification Framework दिया है, वो डॉक्यूमेंट दिया है और उसके SOPs दिए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसमें आपका फ्रेमवर्क कैसा रहना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट्स आपके होना चाहिए, कितने कंपोनेंट पे कितना आपको वेटेज देना है, ये सब कहा गया है। इसकी पढ़ाई करने की जरूरत है जो अभी हायर अप्स पे है, और उस तरीके से इम्प्लीमेंट करिए। इसके अलावा और एक NCRF भी है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ओके, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज अ मेटा फ्रेमवर्क, मतलब जिसमें NHEQF है, NSQF है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, और स्कूल करिकुलम का फ्रेमवर्क है। ये तीनों का इंटीग्रेशन करके एक नेशनल लेवल पे नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क दिया गया है। वो फ्रेमवर्क में ये सब चीजें दी गई है, कैसा आपका सिलेबस, मतलब कैसा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, कोई भी इसका ढांचा एजुकेशन का होना चाहिए, वो सब कहा गया है। और इसका सेंसिटाइजेशन भी कमिटी के माध्यम से किया गया है। बट टू व्हाट एक्सटेंट पीपल टेक इट राइटली इज क्वेश्चन, बट definitely those who will not adapt to it will be the sufferer in the future. That I can tell you for sure. Yes. Because I tell you, Dr. Patil sir, जो मैं जिक्र कर रहा था कि अभी जो नए जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आए हैं, वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस में आपको आप पढ़ेंगे तो समझेगा आपको कि NAP 2020 के ओरिएंटेशन के साथ साथ वो चेंज किए गए हैं। मतलब उसमें NAP 2020 का ओरिएंटेशन दिया गया है। ओके, फॉर एग्जांपल से फॉर द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि NAP 2020 कहता है कि टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, या डिजिटल सब कंटेंट्स उसने बनाए कि नहीं, उसने कुछ ऑनलाइन या मूक कोर्सेस तैयार किए कि नहीं, उसके लिए भी वेटेज दिया गया है। ओके, सो बाय हुक और क्रुक एवरीवन विल हैव टू अडॉप्ट टू दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके, सो दैट you get oriented as per the NAP 2020. ये कहा गया। सर वो जो फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें से अभी देखा जाए तो ये तो माइनर जो ये रहेगा कोर्स, यानी एक प्रोग्राम में जो माइनर कोर्स रहेगा, तो माइनर कोर्स से तो वो तो कंट्रीब्यूटरी लेक्चर भरा जाएगा ना हर कॉलेज में। नीड नॉट क्यों कंट्रीब्यूटिव भरेंगे? फिर उनका जो ये है अपना जो सा वर्कलोड है वो कैसे कर? या मल्टी स्किल टीचर्स। अभी क्या है ना, आपको ये भी मतलब ड्राफ्ट इसमें देखा गया है कि आपकी PhD जिस फील्ड में है उस फील्ड में भी आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। मतलब आपका पेरेंट डिग्री दूसरी इसमें है, PG दूसरी इसमें है, पर PhD दूसरी इसमें है, तो उसमें भी आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का हीरा है, मीनिंग दैट टीचर्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव द मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज। ओके, तो इनका वर्कलोड अंडरलोड नहीं होगे, वो कभी उनको बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे। धन्यवाद सर। या आपने बहुत अच्छा ये परिचय दिया सर, जिसमें आपने एक मुद्दा बहुत ही बढ़िया सुंदर कहा कि NEP 2020 को ये सभी लोगों ने, हम सभी ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, पहला स्टेप तो हो गया है कि भाई इसमें कूदना है, हमने ये स्वीकार कर लिया। और आपने यह भी कहा कि भाई इसके बाद अभी तो इस पॉलिसी को अभी जवान होने दो, यानी अभी 5-10 साल अभी इसका देखेंगे। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे हेजिटेशंस हैं, ये सब जब निकलेंगे तब कहीं जाके इसके रिजल्ट हमें अच्छा मिलेंगे। ऐसा जो भी आपने मालूमात दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपकी बात को कोट करना चाहूंगा। तो आपने कहा था कि ये जो पॉलिसी है ये आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं कहा जा सकता। तो अभी इसके बहुत सारे आउटपुट्स आने बाकी है जो आपके लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सो सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एंगेज विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।
Okay. So, Priti madam, shall we end up, or is there Yes, sir. anything? If there are no questions, we'll wind up our session here. I extend my heartfelt thanks to respected Dr. Dethe sir for engaging an informative session for all the participants and with healthy discussion on the topic. Thank you so much, sir, once again from all of Thank you, dear all participants, for coming up in a very vibrant way in this session, and participating in the discussion. Thank you so much to all. Thank you so much, sir, once Thank you. again. Thank you. Once again, thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम रुकते हैं, आज के सेशंस हमें यहीं पे खत्म होते हैं। आप होप आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क की होगी पहले और दूसरे सेशन की। आज का पहला दिन है, कोई अगर भूल गए होंगे तो अभी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, कोई प्रॉब्लेम नहीं है। कल आप लोगों को छुट्टी रहेगी। वी विल मीट ऑन 18th 18 तारखेला आपण भेटूया 4 वाजता। थँक यू सो मच एव्हरीवन। थँक यू। हेलो हाँ, एक जण बोला प्लीज। मैडम हाँ, बोला पीयूष सर। अटेंडेंस जो है